Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV's Morning Pulse. On K. Kavita launching her new party, Telangana Rashtra Sena, NV Subhash alleged that the move is aimed at benefiting the Indian National Congress by splitting votes from the Bharat Rashtra Samiti. He further accused Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy of backing the initiative for political advantage. There is not so much of importance to be given for the new party which has been launched by Kavita, the daughter of former CM KCR. She named it as TRS, Telangana Rashtra Sena. We see that it is an internal problem within the family. From past 10 years, from 2014 to 2023, when they were in power, they have looted the state right and left, top and bottom. They have made tons and tons of money, especially the family members of KCR. Now, after losing power, the distribution of assets, wealth and money is the main problem within the family. So she has come out of the family because she did not get a piece of cake, piece of pie from the wealth which has been looted by Telangana of the Telangana people. So she is upset and then she has come out. What we see, the Bharatiya Janata Party, is that this is nothing but launching of a new party is nothing but it is a support of the Congress, the party, especially Revanth Reddy. Revanth Reddy is funding, the KCR daughter, Miss Kalvakonda Kavita, for launching a new party, for supporting in all ways, especially in finance, and so that votes can be split of the BRS party. Earlier also, many parties have come. Sharmila also started a new party here in Telangana, and ultimately she merged the party with the Congress in Andhra Pradesh. So it is only the foul play, we can say, that Revanth Reddy wanted to somehow make sure that in next assembly elections also he wanted to be the chief minister of the state. So he is playing lot of dirty politics, dirty tricks in order to keep his seat warm for upcoming elections, and it is completely funded by the Congress party. We don't see any threat or any a new thing will be happening by launching of Telangana Rashtra Sena. It is one more version of the corruption party of the TRS. Kalvakonda Kavita garu. Minister Parvesh Verma launched a sharp attack on the Aam Aadmi Party, questioning the funding and expenditure behind alleged luxury properties linked to the party leadership. Referring to the party as Alishan Aadmi Party, he accused its leaders of prioritizing lavish projects over governance and claimed internal dissatisfaction is driving workers away from the organization. नाम है इनका आम आदमी पार्टी और काम है इनका राजा महाराजा के, तो इनका नाम आम आदमी पार्टी नहीं होना चाहिए, इनका नाम होना चाहिए आलीशान आदमी पार्टी। मैं 2 लाइन बोलकर और 4 सवाल पूछकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि सादगी का चोला पहनकर लूट का व्यापार किया, 2 कमरों का वादा था पर शीश महल तैयार किया, जनता मांगती रही हिसाब पानी और बिजली का, पर अपनी अय्याशी के लिए जनता के भरोसे का कत्ल सरेआम किया। आज मैं अरविंद केजरीवाल जी से 4 सवाल पूछना चाहता हूं, पूरी आम आदमी पार्टी से 4 सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल जी बताएंगे कि लोधी रोड वाले बंगले में जितना पैसा लगा है, ये जो नया शीश महल उन्होंने बनाया है, इसमें जितना पैसा लगा है वो पैसा कहां से खर्च हुआ और वो पैसा किसका है? मेरा दूसरा सवाल है, क्या यह सच नहीं है कि आपकी इस विलासी शौक की वजह से आपके आम आदमी पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं? 2 कमरे के फ्लैट का वादा करने वाले को इतने आलीशान शीश महल की बनाने की क्यों जरूरत बार बार पड़ रही है? क्या इस बात का जवाब केजरीवाल जी देंगे? भाजपा पूछना चाहती है कि जिस तरह पहले शीश महल में शराब ठेकेदारों का पैसा लगा और उनको फायदा पहुंचाया गया,
इस नए शीश महल में किन कंपनियों का पैसा लगा, ये पैसा कहां से आया और कितना पैसा खर्च हुआ, और क्या इसके अंदर में जनता को घुसने की इजाज़त होगी, वहां पर उनको देखने की इजाज़त होगी। ये मेरे 4 सवालों के साथ में मैं देश की जनता को, दिल्ली की जनता को केजरीवाल जी की सच्चाई, उनका ढोंग, उनका फरेब, उनका झूठ एक बार फिर से दिखाने आया था। ये तस्वीरें देखकर देश की जनता जो अब उनको पहचान चुकी है कि वो बार बार यही काम करेंगे, क्योंकि चोर अपनी चोरी से नहीं जाता है, बार बार वो चोरी करता है। ऐसे ही केजरीवाल जी अपनी आदत से नहीं, उनका पीछा छूटेगा। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सबको ऊपर जाना है, भगवान को एक ना एक दिन जाके जवाब देना है। किस मुंह से आप उनको जवाब दे पाएंगे इतना ढोंग करने के बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा दिखा दें। वही जाएंगे। ये उनके पूरे घर का लेआउट है, जिसमें 5 बेडरूम है, 4 ड्राइंग रूम है, लॉबी है। बाथरूम की पिक्चर इसमें नहीं है। जो शीश महल में हमको गोल्डन टॉयलेट सीट जो हमको नहीं मिली थी, शायद वो इसी घर में आई है। एक बार फिर से पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं। जितना दिमाग उन्होंने पूरे एक एक कमरे में, कारपेट कौन सा होना चाहिए, पत्थर कौन सा होना चाहिए, लाइट कौन सी होनी चाहिए, पेंटिंग कौन सी लगनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, ये सब में लगाया होगा। अगर इतना दिमाग वो अगर दिल्ली की जनता में लगा देते, दिल्ली के कामों में लगा देते, इतना समय भी लगा देते, तो शायद आज उनके कार्यकर्ता उनकी पार्टी को नहीं छोड़ के जा रहे होते। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, शायद उनको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 11 साल में उन्होंने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया। ये सारी पिक्चर्स आपको भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। On speculation surrounding Raghav Chadha and a possible shift of AAP Rajya Sabha MPs Udit Raj and those leaving are returning to their original political space, he criticized Arvind Kejriwal, alleging that many founding members have distanced themselves from the party and questioning its internal leadership dynamics. देखिए, ऐसा है कि घर वापसी है। अब वो याद है कि जो रामलीला मैदान में इन्होंने मजमा जमाया था और कितने सारे फाउंडर्स थे, प्रशांत भूषण, उनके पिताजी, प्रोफेसर आनंद, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, संजय हेगड़े, आशुतोष गुप्ता, बड़े बड़े वेटरन हुआ करते थे। क्या उनमें से कोई इनके साथ रह गया? दुनिया में यही एक पार्टी ऐसी है जिसके फाउंडर्स केजरीवाल जी के साथ जो थे वो रहे ही नहीं। तो किसमें दोष है? सारे फाउंडर्स में दोष है। यानी घटिया से घटिया आदमी के भी कुछ साथी रह जाते हैं। ये इतने घटिया हैं कि इनके सारे फाउंडर छोड़ के चले गए। एक बात। और दूसरी, घर वापसी इसलिए कह रहा हूँ कि आरएसएस बीजेपी ने फंडिंग की थी, मैन पावर दी थी, मीडिया का पूरा सेटअप दिया था, लॉजिस्टिक सपोर्ट किया था। इनका क्या था? ये तो एक एनजीओ चलाने वाले थे। तो अब पे बैक करें उनको। अगर 7 एमपी गए तो कायदे तो सारे एमएलए चले जाना चाहिए और केजरीवाल जी को चले जाना चाहिए। बड़े मजे ले लिया। जो मतलब क्रिएशन किसका? आरएसएस बीजेपी का क्रिएशन है। तो आपकी वापसी होनी चाहिए इन लोगों सबकी। इन्होंने देश का बड़ा नुकसान किया। कोयला, कॉमनवेल्थ गेम, G2 स्पेक्ट्रम का घोटाले का आरोप लगा करके मनमोहन सिंह जी सरकार को बदनाम किया। परिणाम स्वरूप बीजेपी सत्ता में आई। आज संविधान खतरे में, नौकरी खतरे में, निजीकरण है, किसानों की समस्या है, युवाओं की समस्या है, अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, असमानता बढ़ती जा रही,
सांप्रदायिकता, इस सब के पाप, इस सब पाप के भागीदार ये भी हैं। श्री अरविंद केजरीवाल हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनकी घर वापसी है, इनकी घर वापसी भी हो जाए। इन्होंने देश के साथ धोखा दिया है, गद्दारी की है, और कांग्रेस से माफी मांगना चाहिए और संदीप जी का पांव पकड़ के माफी मांगना चाहिए। उनकी मां को जिस तरह से बदनाम किया था। Representatives of the Tibetan community in Shimla marked the birthday of 11 Panchen Lama, describing the occasion as significant for Tibetans and Buddhists worldwide. Leaders say the celebration honors his spiritual importance and legacy while renewing calls for clarity on his whereabouts after his disappearance at a young age. They also emphasized preserving Tibetan culture, language and tradition in the line with his memory. Yeah, for Tibetans, for us, it's a very important day. Today we are celebrating the 11th Panchen Lama's birthday, and soon after his birth, in 1989, April 25, at Tibet. And at the age of 6, His Holiness Dalai Lama recognized Panchen Lama, the most high position in Tibetan Buddhism, and next to His Holiness Dalai Lama, and we can say that second highest position in Buddhist monasteries. And today we are celebrating the birthday here to remember his lifelong legacy to the Tibet and the people of Tibet. As you know, the 10th Panchen Lama, he has been through many difficulties, and he has written a letter, 70,000 words of letter to Chinese government for the purpose of Tibetan's freedom struggle. And Chinese, after submitting the letter, Chinese court 10th Panchen Lama and put in imprisonment, and he has faced many problems. And now we will talk about the 11th Panchen Lama. At the age of 6, he was taken away by Chinese authorities. Not only him, his tutor, Chadel Rinpoche, along with his family members. And till today, we didn't know where he is and in what condition he is living, and what about his education and religious education also. So we are happy to celebrate his birthday, and at same time we are feeling very sad and melancholy, but we didn't know his status. Anyhow, we are celebrating his birthday to give a message to the Chinese people that we are celebrating, and we are very happy to know that Panchen Lama, which was recognized by His Holiness Dalai Lama, was well known and accepted by Buddhist communities throughout the world. And Chinese took the Gyaltsen Norbu as a Panchen Lama, and Gendin Chogi Nyima he put in imprisonment or in some other place. We didn't know where he is. And in the world, in the Buddhist community, we didn't accept Gyaltsen Norbu as 11th Panchen Lama. And today we are celebrating as per his wishes. We are promoting our culture, promoting our Tibetan dialects, Tibetan traditions, and we are doing in each and every state where Tibetan communities live as a birthday, and we recognize as a small gift and service for the Tibetan as per Panchen Lama's message. Yes, it is very important occasion for not just for all the Tibetans but to all the Buddhists around the world, because it is his 11th Panchen Lama's birthday, and he is 37-year-old now, by now. And thing is that we still don't know where he is. At the age of 5, I guess, he was kidnapped by the Chinese when he was announced at the 11th Panchen Lama by His Holiness the Dalai Lama. And we would like to suggest UN and all the other nation around the world to support this Tibetan cause, because it's very important, since he's considered as the second highest ranking Lama in the Tibetan Buddhist culture. We always celebrate his birthday as if he is here with us, and we always hope that next birthday will be with him
we're celebrating with him. That's all we hope every day, every time we celebrate his birthday. Sanjay Singh says the Aam Aadmi Party is steadily expanding in Gujarat and remains active at the grassroots level. He alleged that the Bharatiya Janata Party jailed AAP MLAs, filed what he called false cases against candidates before municipal election, and was behind the suspension of AAP's Gujarat pages on Facebook and Instagram. He added that these actions reflect BJP's political strategy and claimed that public support in Gujarat is moving forward AAP. गुजरात में आम आदमी पार्टी का विस्तार लगातार हो रहा है। गुजरात में जनता के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी जमीन पे संघर्ष कर रही है। 5 हमारे विधायक हैं वहां, 14% विधानसभा में हमको वोट मिला था और हमारे कई विधायकों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला बीजेपी ने। चैतर बसावा को जेल में डाला, 2 बार जेल में डाला, जो आदिवासी समाज के बड़े नेता है। यहां तक कि उनकी पत्नी को जेल में डाला। ईसुदान गढ़वी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको जेल में डाला। गोपाल इटालिया हमारे विधायक हैं उनको जेल में डाला। प्रवीण राम जी हमारे नेता हैं उनको जेल में डाला। ऐसे तमाम लोगों को पकड़ पकड़ के पिछले कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाला, उनको प्रताड़ित किया, उनको परेशान किया, उनके ऊपर तमाम सख्ती की। फिर इन्होंने अभी जो वहां पर नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, तालुका और जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है, नगर निगम का चुनाव हो रहा है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को फर्जी मुकदमे लगा के, धमका के, डरा के उनके ऊपर उनको कैंडिडेट्स ना बने, फॉर्म ना भर पाए, पार्टी की तरफ से ना खड़े हो, ये काम किया। फिर हमारे एक कैंडिडेट के ऊपर फायरिंग करवाई, अभी इसी नगर पालिका के चुनाव में फायरिंग करवाई गुजरात में। और आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो हमारा गुजरात का फेसबुक का पेज भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड करा दिया, इंस्टाग्राम का पेज भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड करा दिया और 3 अलग अलग लोगों के अकाउंट सस्पेंड करवा दिए जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे। अब इसकी वजह क्या है? बीजेपी अपने गुनाह को नहीं ठीक कर रही, अपने काम करने के तौर तरीके को नहीं ठीक कर रही। स्कूल अस्पताल कैसे बनेंगे, गुजरात का विकास कैसे होगा, इसको नहीं सही किया जा रहा। तो जनता आम आदमी पार्टी की तरफ झुक रही है, आम आदमी पार्टी से जुड़ रही है, आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है और इसमें 8 करोड़ लोगों ने 26 दिन में सोशल मीडिया पर जाकर आम आदमी पार्टी की पोस्ट देखी। यह कोई मामूली बात नहीं है। 8 करोड़ लोगों ने गुजरात के 26 दिन के अंदर जाके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आम आदमी पार्टी की पोस्ट देखी है, जिसमें कुछ उनके जन विरोधी काम थे उससे संबंधित पोस्ट भी थी, कुछ हमारे नेताओं के भाषण थे, उनके संघर्ष थे, उनकी लड़ाइयां थी। लोग जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो इनको लगा कि जो व्यक्ति गुजरात का घर पे बैठा हुआ है, जो सड़क पर निकल के नारेबाजी नहीं कर सकता बीजेपी के खिलाफ, वो आज आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़ा हो रहा है, वो आज आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे रहा है, वो आम आदमी पार्टी के पोस्ट को लाइक कर रहा है, देख रहा है। तो आम आदमी पार्टी की बात और विचारधारा, आम आदमी पार्टी के काम लोगों तक ना पहुंचने पाए, इसलिए हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज सस्पेंड किया गया। मैं गुजरात के भाइयों से कहना चाहता हूं, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने दूसरे माध्यमों से आम आदमी पार्टी के जो वीडियोस हैं, जो उनके पोस्ट हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और जिस तरह से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसका और मजबूती से विस्तार कीजिए। और मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, तुम्हारे ऐसे घिनौने खेल का कोई असर नहीं होगा। इस बार गुजरात की जनता 30 वर्षों के कुशासन का सूपड़ा साफ करेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। और नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत तालुका के चुनाव में भी हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। नंबर 1 और नंबर 2,
That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.